Hello, everyone. Welcome to yet another lecture in your ISC history series. And today's session, we're going to focus on your paper. A sample paper, how to write the answers, how to solve questions, and simultaneously a quick revision of a few concepts. Okay? So let's start. Question number 1. The All India Kisan Sabha was formed by the socialists and the communists to fulfill their need for one central peasant organization. State any other purpose for the same. Now, see, farmers had been subjected to a lot of atrocities even before, of course, during the British time. 1 second, please. Yeah, of course, during the British time. And even before that, due to certain policies brought by the administration at play. But of course, during the time of the British rule, we had the money lending class plus the landlords, which were tormenting these farmers altogether. So one other reason or one other purpose for the formation of this organization could be to bring them out of the atrocities of these two classes. Okay? So, since they were subjected to a lot of atrocities over time, itna torture hua, sometimes because of interest rates, sometimes because of loan repayment nahi ho pa raha hai. And I already told you in my lectures that इतना इकट्ठा हो जाता है. I'm sure ISC में नहीं था, but CUET वाले lectures में it's pretty visible over there कि इतना interest इकट्ठा हो जाता था that farmers were totally in debt. और उसको return करते करते इतना time उनको लग जाता था. Sometimes what happened was that their interest was more than their principal. So when so much of the interest accumulated, so much payment accumulated, they were indebted, they were pressurized. और उसी के चक्कर में, we saw a lot of farmer suicides also. So the formation of All India Kisan Sabha was, of course, for this other purpose. Besides this thing that they needed, one, All India, this thing, Central Peasant Organization. Give any one reason to show that Cripps mission challenged the idea of a single and indivisible nation. See, when Cripps mission came, there was an explicit thing in Cripps mission which said that Indian states could secede from this entire subcontinent. It gave them an option. You want to be with India? Well and good. You don't want to be with India? You can secede also. So the idea of secession, कि अगर आप इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप में बनना चाहते हैं, तो वो आइडिया जो यहाँ आया था, दैट वाज वन थिंग दैट चैलेंज द आइडिया ऑफ इंडिविजिबल नेशन. इंडिविजिबल नेशन यानी कि अनडिवाइडेड. ओके, तो उसको चैलेंज करना क्रिप्स मिशन का ये एक फैक्टर था. ओके, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रजाकार्स. If I go back to Operation Polo, इतना atrocity हो गया, इतना agitation हो गया था हैदराबाद में. People wanted to join India. The Nawab did not want. So he unleashed rather, the paramilitary forces. छोड़ दिया, जाओ attack करो जा करके. Women, men, children, सब पे attack करो. These paramilitary forces were Razakars. Of course, after that, the Indian army intervened. Okay, and the order of our prime minister, and things were sorted. Identify the correct statement about the Maintenance of Internal Security Act MISA passed by the Indian Parliament in 1971. इसका gist आपके chapter में है, but exactly mentioned नहीं है. So if I okay, right, okay. Just a second, I'll have to, I think, erase this. Okay, coming to the options, it was enacted to regulate the functioning of NGOs. Of course not, ये तो outright ही बाहर है. Maintenance of Internal Security Act, NGO से कोई ताल्लुकात नहीं है. It allowed for the detention of individuals without a trial. This is the correct answer.
Okay, it did allowed for the detention of individuals without trial. मेसा के अंडर आप क्या कहते हैं कि आप डिटेन कर सकते हैं, ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है. Okay, and this was the same time when Mrs. Gandhi was ruling. Her elections were also being challenged. Of course, it was later repealed, okay, not by the Janta government, okay, it was repealed by the UPA government only. But yes, what was the primary reason for the rejection of imperialism and colonialism by the world leaders at the Belgrade Conference? To encourage the spread of democracy in the world? नहीं, democracy के लिए Belgrade Conference नहीं थी. To, I mean, इनका main agenda नहीं था. To assert the right of self-determination of all nations is the correct answer. Okay? Neither, see, साइडवाइज अगर आप देखोगे तो ये भी चीजें इनकॉर्पोरेटेड थी, बट उनका मेन एजेंडा, द प्राइमरी रीजन ये नहीं था. प्राइमरी रीजन वाज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल नेशंस. ओके, दिस इज व्हाई इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म वाज रिजेक्टेड. अगर आपको रूल किया जा रहा है, अगर आपको कॉलोनाइज किया जा रहा है, आपको इंडिविजुअल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है. इसीलिए रिजेक्शन ही was the major thing which could have given us the right of self-determination. Okay, the correct option is B over here. All right, 1 second please. Okay, which one of the following describes the reason for the establishment of COMCON? It was Stalin's plan to create an economic extension of the Warsaw Pact. नहीं, Warsaw Pact बाद में आया. It was a response to the formation of NATO and the threat it posed to Soviet Union security. Soviet security. NATO was formed by America. All right, the Western countries and America. Military alliance था. और ये threaten कर रहा था. Of course, इसके retaliation में Warsaw Pact आया था. बट नेटो के इमीडिएटली बाद ही हमने कॉमकॉन देखा. बी. ये तो बिल्कुल नहीं है. ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज टू गेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, नहीं. टू इंक्रीज द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इन ईस्टर्न यूरोप. इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अभी आया नहीं है यूएस ये काम करने. अभी यूएस का मेन फोकस क्या है? वेस्ट में रहते हैं, पहले वेस्ट को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, फिर हम ईस्ट में जाएंगे और हम ईस्टर्न नेशंस को कोशिश करेंगे कि उनको भी स्टेबलाइज करें, उनको हम कैपिटलिज्म के साइड ले जाएं ताकि वो कम्युनिज्म के हाथ ना जाएं. बट आप देखो अगर इस टाइम पर तो वो ऑलरेडी कम्युनिस्ट उसके आइडियोलॉजी के अंदर आ चुके थे. एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू नेशंस दे वर ऑलरेडी अंडर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका ब्रॉट बाय गोर्बाचेव. These were the economic reforms brought by Gorbachev when he came to power in USSR. And the impact of these policy was demand for democracy, freedom for press, more secularism. इन सब का एक डिमांड था, हमको डेमोक्रेसी चाहिए. ओके, प्रेस का क्या करते हैं? अगर प्रेस को फ्रीडम देंगे, प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. So if press gets freedom, that is where democracy steps in. So he was trying to go against the original ideology of Stalin, okay, Lenin, Stalin, what Nikita Khrushchev was following, and he was trying to bring in democracy because he knew, उनको पता था कि 1985 आते आते रशिया की, I mean USSR की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, हमारे पास पैसा नहीं, I mean पैसा है बट इतना नहीं है कि हम अभी यूएस के साथ compete कर सकें. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनके साथ कंपीट कर सकें. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करते हैं. ओके, हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड. अब आते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस. यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कंफ्यूजन हो जाता है. द रीजन इज सब ऑप्शन बहुत करीब लगते हैं, लुक वेरी क्लोज, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, this is also possible. So let's see how we can deal with these questions.
Hitler's invasion of Poland became a cause of worry for Britain and France. The security of Poland's borders were guaranteed by Britain and France. Please try to understand one thing. Britain and France, जिसको हम फोनी वॉर कहते हैं, इन्होंने गारंटी किया था कि पोलैंड डोंट वरी, अगर आपको अटैक करता है आकर के जर्मनी, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे. Remember, this is what we discussed during the World War situation, कि Britain and France, both of them had given assurance. But point ये हो गया कि जब बात आई एक्शन की 3 सितंबर, तब ये कुछ नहीं कर पाए. एक फोनी वॉर था, ओके, डिक्लेरेशन कि चलो ठीक है, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर वॉर, बट कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं था. ओके, सो Hitler's invasion of Poland became a cause of worry for Britain and France. हमें इसका वजह ढूंढना है, रीजन. क्या ये रीजन सही है कि नहीं है? क्यों वो कॉज ऑफ वरी बना था ब्रिटेन एंड फ्रांस के लिए? क्योंकि ब्रिटेन एंड फ्रांस ने ऑलरेडी एक अश्योरेंस दिया था, which is correct. The reason is correct. रीजन कह रहा है कि उन्होंने गारंटी किया था. तो अब चिंता तो होगी कि हमने गारंटी किया है कि वॉर होगा तो वी विल सपोर्ट यू. ओके, देयरफॉर correct option is A. Both assertion and reason are correct, and the reason is correct explanation for assertion. Okay, I hope this much is clear. Okay, give any one reason to show how the Axis powers were at a big disadvantage against the Allied powers during the Second World War. Allied powers, US, Britain, France. Initially, war, of course, इनके साइड नहीं था, बाद में USSR also joined. But जर्मनी की एक गलती, invasion of USSR. जापान की एक गलती, bombing of Pearl Harbor. They turned the war, okay, in favor of Allied against the Axis. So, और दूसरा reason, I mean, coming to the answer, just wait a minute. Another thing was कि जर्मनी अपना काम कर रहा है, इटली अपना काम कर रहा है, जापान उधर से अपना काम कर रहा है, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस बना है. बट फायदा क्या है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड नहीं थे. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन was one major factor which led to their loss. Okay, they were at a big disadvantage against, okay, Allied powers यूनिफाइड थे, उनका एक कॉमन गोल था लिबरेशन. ओके, बट एक्सिस पावर्स यूनिफाइड नहीं थे. वो जर्मनी का मन हुआ, उसने इन्वेजन शुरू कर दिया, उसने लंदन जाकर के बॉम्ब कर दिया, मर्जी थी. अब लंदन में कुछ काम नहीं चल रहा है तो हम यूएसएसआर को इन्वेड कर रहे हैं. अरे पूछो इटली से, पूछो इटली आर चला रहा है अफ्रीका में, जर्मनी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा? जर्मनी का सिचुएशन वहां क्या चल रहा है? क्या इस समय when you are invading Abyssinia, situation सही, I mean just giving an example कि क्या situation सही है हमारे invade करने के लिए? तो सवाल जवाब कुछ था ही नहीं. There was no coordination. All three of them, though guided by similar ideologies, but were doing their own thing. आइडियोलॉजी हो सकती है सिमिलर हो, गोल सिमिलर नहीं था. सबको ही अपना एक्सपेंशन चाहिए था. एंड ट्रस्ट मी, अगर ये आ जाते, जापान इधर आ जाता, यूरोप की साइड इनका कंट्रोल हो जाता, इन इटली का एंड जर्मनी का इन यूरोप, तो इनके बीच में भी क्लैश होता. सो ऑफ कोर्स the lack of coordination became one great reason why Axis powers lost the war against the Allied powers. All right? Okay. State any one effect of Mao Zedong's great leap forward policy on China's economy. कहा जाता है कि माओ जेडोंग की जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी थी, इट वाज क्वाइट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन. आइडियोलॉजी ठीक थी, अच्छी थी, बट इमीडिएटली उसके ड्रॉबैक्स थे. Immediately, Mao Zedong and China had to face the repercussions of the actions they came up with. Repercussions in the form of famines. Okay? Economy went down, declined. Okay? Distribution हुआ land का. Okay? छोटी छोटी factories खुलवा ली इन्होंने. Okay? But
इम्प्लीमेंटेशन शायद उतनी अच्छी से नहीं हो पाया, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन कर गई. Okay, so I've given you 3 reasons. You can quote any one. Okay, agricultural productivity famines interrelated है तो इकोनॉमी डिक्लाइनिंग भी इंटररिलेटेड किया यार. एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है तो इकोनॉमी अफेक्ट होगी होगी. ओके, बट यस, सो फार्मर्स ऑल्सो स्टार्टेड सुसाइडिंग. अब कोई ऑप्शन लेफ्ट ही नहीं है. चाइना इतने समय से ऐसे ही परेशान हो रखा है. ओके, ऑल राइट. Give one contribution of the Mahila Dakshita Samiti in promoting the rights of women. यहाँ पर महिला दक्षता समिति ने डाउरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे दिल्ली में. इनकी वजह से एक्ट्स आए, NCW 1999 एक्ट. ओके, इनकी वजह से I of course told you कि they all came together, a lot of women organizations, they came together and fought against dowry, क्योंकि dowry जो था अब एक household term बन गया था. Okay, so they fought against dowry and because of their efforts a lot of acts were passed in favor of women. Okay, Prevention of Domestic Violence Act 2005. All right, state any one fact to highlight the significance of general election of 1967. Oh my god, this is a very important question और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. इसका significance lies in the fact कि वो कांग्रेस जो 1885 में फॉर्म हुई और तब से लेकर के 1967 तक 66 तक उसने डोमिनेट किया हमारी कंट्री को. दैट कांग्रेस हिस्टोरिकल डोमिनेशन एंडेड. ओके, द अनडिफीटेबल कांग्रेस. ओके, जीत गई थी इलेक्शन. आई एम नॉट सेइंग मिसेस गांधी डिड कम टू पावर एट दिस टाइम, बट वो जो मेजॉरिटी मिल रहा था, वो जो कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस को, ओके, वहां से इट लॉस्ट इट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. Key states में Congress lost its absolute majority. So one fact that highlighted the significance was that the undefeatable Congress was actually defeated. It lost seats in several states at this particular time. काफी चीजें थी, काफी रीजंस थे इसके. फैक्शनलिज्म उसमें भी शुरू हो गया था कांग्रेस में अपने आप में ही. हमने देखा कांग्रेस आई ओ. ओके, सो इतना फैक्शनलिज्म हो गया कांग्रेस में, सपोर्टर्स डिवाइड हो गए और वो फैक्शनलिज्म ने अफेक्ट किया इलेक्शंस को भी. ऑलराइट, सो जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 प्रूव्ड दैट बाकी पार्टीज भी पावर में आ सकती थी. ओके, okay, coming to the next question. Why were the historic 8 documents significant in the Naxal movement? लिखा किसने था? चारू मजुमदार. चारू मजुमदार ने लिखा था historic 8 point documents. 8 documents. Okay, significance क्या था इसका Naxal movement में? एक common ideology provide कर दी. It gave a common ideology to everybody, okay, and of course formed the basis of future armed Naxalite struggles. Ideological foundation तो दिया और बाद में जितने भी Naxalite movements हुए थे उनका एक बेस यहीं पर बन गया था. Okay, so that was the significance of historic 8 point documents. इन्हीं की आइडियोलॉजी को लेटर फॉलो किया गया हर Naxal मूवमेंट में, Naxalite स्ट्रगल में. Mention any one similarity between Black Americans' experiences before the emergence of Dr. Martin Luther King and Black South Africans' experiences under the apartheid ruled. You all know the reason. The similarity rests in the racial discrimination that these people faced.
okay, by both the classes of people in the respective regions. Okay, यहां पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये यहाँ पर ब्लैक अमेरिकन का आज तक चल रहा था, ब्लैक लाइव्स मैटर, ओके, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर एंड स्टफ. Gandhi ji was also there fighting against apartheid, okay, Nelson Mandela, okay, and black South Africans also experienced the same thing, क्योंकि वहां पर domination हो रहा था of course colonizers का, तो वो उनके पास राइट्स एंड लिबर्टीज ज्यादा हो रही थी, हमारे पास राइट्स एंड लिबर्टीज कम हो रही थी. तो वो डोमिनेशन के चक्कर में ना हमने कांस्टेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है. एंड अंडर दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा वायलेंस हुआ है दोनों जगह. व्हाट इज स्ट्रेंज इज कि आज तक चलता है, इतना वायलेंस, इतना स्ट्रगल ये आज तक चल रहा है. Okay. Why was PLO critical of the Oslo Peace Accord 1993? Palestine Liberation Organization. It was critical of Oslo Peace Accords because in accords ने इन्हें ये नहीं गारंटी किया था कि पैलेस्टाइन completely independent है. उनको एक limited self rule दे दिया था. कि आपके पास कुछ राइट्स हैं, ओके, अपना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैरी ऑन करने के लिए एक लिमिटेड सेल्फ रूल दे दिया गया था. ओके, कहाँ पे? वेस्ट बैंक और पार्ट्स ऑफ गाजा स्ट्रिप पे. ओके, तो उनकी सॉवरेनिटी को यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. रिस्ट्रिक्टेड सॉवरेनिटी, और इसका इंपैक्ट आज तक है. इवन इफ यू गो टू वेस्ट बैंक या गाजा स्ट्रिप तो चलो हमास कंट्रोल्ड है, वहां पर भी इजरायली सेटलमेंट्स हैं. हम वेस्ट बैंक में भी जाएंगे तो हमें इजरायली सेटलमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. इतना लिमिट कर दिया है हमने उन्हें. ओके, बट उसका इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, mention any one effect of the first Arab-Israel war on the lives of Palestinians in Gaza. Pretty obvious and direct answer. These Palestinians were displaced. A lot of them fled. They were expelled from their homes. Okay. They later sought shelter in the Gaza Strip. Okay. Gaza Strip में इतना influx of, one sec. गाजा स्ट्रिप में इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज हो गया. दीज पैलेस्टीनियंस दे फ्लेड, ओके, दे टुक रेफ्यूज इन गाजा स्ट्रिप. कुछ तो और बाहर चले गए, वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए. ओके, यहां पर इन्होंने रेफ्यूज लिया. ओके, कंडीशंस, इतना जगह इतनी सी है, रहने वाले इतने के बराबर आ रहे हैं. लिविंग कंडीशंस डेटेरियोरेट कर गई, यहां पर रिसोर्सेस की कमी होने लगी. ओके, सो दिस इज व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द अरब इजराइल वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पैलेस्टीनियंस. They had to they had no other option than to just leave their country that particular time. Okay, let's do it this way. I'll put the paper this side और इसका आंसर का थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. ओके, हाँ, इसका आंसर का डिस्कशन हम इस साइड पे करते हैं. ओके, तो पेपर इज दिस साइड एंड आंसर आई डिस्कस दिस साइड. ओके, पॉइंट्स लिखते हैं क्योंकि अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं. So I would suggest, and it's always feasible, that you write your answers in points. उससे क्या होता है, आंसर directly catchable होता है. Maybe highlight the important, the keywords, okay, in each and every point. उससे directly सामने वाले को पता चल रहा है कि okay, the answers are there and हमारा इसको आंसर पता है, इसको कीवर्ड पता है, इसको रीजन पता है. तो वो बोर्ड एग्जामिनर्स, क्योंकि उनके पास इतना कॉपी होता है, तो वो स्किप नहीं करेंगे या फिर वो जल्दी जल्दी में नहीं रीड करेंगे. वो आपके पॉइंट्स देखेंगे, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा और आपके 4 मार्क्स वहीं पे हैं.
क्वेश्चन क्या है? डिस्कस ऑपरेशन पोलो। ये नहीं कहना है मारपीट हुई, ये हुआ, वो हुआ। हमें कहां से स्टार्ट करना है? विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। तो हम दो कीवर्ड्स को साथ लेके चलते हैं, ऑपरेशन पोलो एंड इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। छोटे से स्टेटमेंट से स्टार्ट कर दो। ओके दो कॉमन पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया। ऑफ कोर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द मास्टरमाइंड, नोबडी कैन डिनाई दैट, क्योंकि इंटीग्रेशन इनके बगैर पॉसिबल नहीं होता। He was the mastermind of behind the integration of the entire process. अब बात ये हुई थी 1947 में ये डिस्कशन हुआ कि चलो ठीक है, जिनको इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रहे, जिनको पाकिस्तान ज्वाइन करना है वो पाकिस्तान ज्वाइन करें, जिनको इंडिया ज्वाइन करना है वो इंडिया ज्वाइन करें। हैदराबाद में ड्रामा शुरू हो गया। पीपल इन हैदराबाद wanted to join India. The Nawab did not want to. Okay, as clear as that. नवाब ने कहा कि हमको 1 साल का समय दो, हमको थोड़ा सा एक साल डायरेक्टली नहीं, कश्मीर वाला इशू हो गया कि ठीक है वी डू नॉट गिव अस सम टाइम। नवाब ने भी कहा कि अभी हम नहीं ज्वाइन करेंगे। ओके थिंग्स वर गुड। ओके नेहरू पटेल इनकी जोड़ी बहुत टाइम तक इट वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे हम प्रिंसली स्टेट्स को, बट काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स लाइक जूनागढ़ एंड मणिपुर काफ़ी चीज़ में हमें स्टेप इन करना पड़ा। ओके तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये लिखेंगे, और इसके पहले प्लीज एक हेडिंग प्लीज एक वो दे दीजिएगा बैकग्राउंड, एक स्टेटमेंट ऐसे करके लिख दीजिएगा, एक कॉमन स्टेटमेंट, जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन। द नेहरू पटेल वर्क ऑन द integration of economy, integration of the countries, or integration of the princely states suffered a huge obstacle faced a huge obstacle in the form of Hyderabad. Okay, where the Nawab of Hyderabad, the Nizam of Hyderabad, Mir Osman Ali Khan, he started, don't write it started acting up. Okay, put it in your own words. He denied to join India immediately. What did he do? He signed a standstill agreement with India. इंडिया के साथ इन्होंने standstill agreement साइन कर दिया। उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी करते हैं, अभी इंटीग्रेट होते हैं। ओके 1947 में साइन कर दिया। प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने तो साइन कर दिया, ओके बट इनके जो लोग थे वो हैप्पी नहीं थे। सो व्हाट हैपेंड, women plus peasants, they were not happy with the decision. Communist party plus कांग्रेस ये साथ में आए। ओके एंड दे फॉट अगेंस्ट द निजाम्स रूल। ओके उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने रिस्पॉन्ड किया बाय अनलीशिंग रजाकार्स। जाओ अटैक करो, जो जो मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है उस पर अटैक करो। आई एम गिविंग यू कीवर्ड्स ऑफ ईच पॉइंट, यू कैन फ्रेम योर सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली। तो हम क्वेश्चन इधर रखते हैं, आंसर इधर लिखते रहते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। डिस्कशन चल रहा है। ओके तो थर्ड पॉइंट आता है सितंबर 1948। सितंबर ईयर इंपॉर्टेंट है, मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ओके जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, ओके अगेंस्ट द रजाकार्स। ओके जल्दी जल्दी से इन्होंने ओवर पार कर लिया निजाम की आर्मी को, ओवर पार्ड द आर्मी, निजाम्स आर्मी। मेरे को जगह पर कम पड़ गई आधा। ओके दे ओवर पार्ड निजाम्स आर्मी एंड दे टुक कंट्रोल ऑफ हैदराबाद। ओके इवन द निजाम लेटर सरेंडर्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 4th पॉइंट आप लिखेंगे, निजाम surrendered and instrument of accession, I'm writing it as IOA, और ये कीवर्ड, please don't act up right now, IOA was signed with India। मीर उस्मान अली खान ने IOA इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया with India।
and that is how Hyderabad was integrated. All right. 4 points, and you can end it with a proper conclusion, saying that Operation Polo was a major step in bringing Hyderabad to the Indian Union. It was also a major step considering the fact कि हमें डर था कहीं ये पाकिस्तान के साथ ना चला जाए. Of course, Nizam was pro-Pakistan. Okay, so डर था, and the Nehru-Patel jodi very intelligently they integrated the state of Hyderabad with the Indian Union. Okay, and that's how they maintained the integrity, the sovereignty of the nation. Okay, giving it a democratic identity. I have given you 4 points over here. ये keywords हैं, ये तो highlight होने चाहिए. अब आपको इनको sentence में लिखना है. Okay, ask me in English. ज़्यादा English बोलूँगी तो आप लोग कहोगे मैम इंग्लिश में बात कर रही हैं. हिंदी में आती हूँ. ओके, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये कीवर्ड्स प्लीज अकोमोडेट कर दो, अंडरलाइन कर दो आंसर्स में. दे आर गोना शाइन आउट. इतना था ऑपरेशन पोलो. 4 मार्क्स का आंसर है. टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं. एक इंट्रोडक्शन दो, एक कंक्लूजन दो, वो एक एक पॉइंट अपने आप बन जाएंगे, और 4 पॉइंट ऐसे बीच में लिख दो. कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है. इसके अलावा ऑपरेशन पोलो में आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं थी. कितने मरे, कितने जिंदा हुए, हाउ मेनी सोल्जर्स वर अनलीज्ड, हाउ मेनी सोल्जर्स वर फाइटिंग, stuff like that is not important. All right, okay, done. One of it is done now. Let's come to the second question. All right, given below is a news extract on the invasion of India in 1962. That's the Indo-China war we are talking about. Read the headline given below and state any 4 reasons behind the invasion. Headline: Chinese forces keep up offensive. Threat to Tawang town developing. Indian troops hold new line of defense. Okay, udhar mat jana. Cuba under US naval blockade. Cuban Missile Crisis later dekhte hain. Okay, this is the headline we are talking about. So, invasion of India 1962. अब ये हम इंडो चाइना वॉर की बात करेंगे. ओके, सो जब हम इंडो चाइना वॉर शुरू करेंगे, हम डायरेक्टली तो जंप नहीं कर देंगे. हमें क्या करना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है. ओके, इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे. सो वी कैन स्टार्ट बाय राइटिंग, यू नो, कि इन द फसाड ऑफ अ फ्रेंडली अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द फॉर्म ऑफ पंचशील प्रिंसिपल्स. हमने पंचशील साइन करा है और हम इज लाइक ठीक है, सब अच्छा है, हम फ्रेंडली हैं, वहां तक ही सब चल रहा था. इन दैट फसाड चाइना अटैक्ड इंडिया. ओके, चाइना अटैक्ड इंडिया. नाउ व्हाट वर द प्राइमरी रीजंस? हमें तो सिर्फ रीजन डिस्कस करना है. 4 रीजंस डिस्कस करने हैं चाइना ने इंडिया को क्यों अटैक किया. तो पहले हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया कि there was a facade in the form of Panchsheel. India kept on thinking कि China is friendly, it's not going to attack us, but eventually China did attack us. Okay, so now when we start writing the point, first point would be unresolved border disputes. आप जम्मू कश्मीर लद्दाख, आई मीन जम्मू कश्मीर लद्दाख जाओ, आप अरुणाचल चले जाओ, मैकमोहन लाइन के फॉर्म में हमारे पास एक लाइन थी. ओके, जो कि ये कह रही थी कि ठीक है, इतना पार्ट चाइना का है, इतना पार्ट इंडिया का है. बट ब्रिटिश ने जो भी डिस्कशन किया था चाइनीज रूलर के साथ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो क्लियर नहीं था. एंड चाइना ऑलवेज थॉट कि अक्साई चिन और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस उनका है, इसीलिए उन्होंने अटैक किया. अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इंडिया, its passive response to Dalai Lama fleeing to India.
along with other Tibetan refugees. When China tried to extend its power there, added fuel to the fire. Dalai Lama comes in situation. Dalai Lama, Chinese invasion of Tibet. दलाई लामा बाकी रेफ्यूजीज के साथ भी आए थे. तो हमने ना एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, ना हमने दलाई लामा को हमने वापस नहीं भेजा. ठीक है, चाइना चाहती थी आपके पास आए, आप वापस भेजो, चलो उनको, वहाँ यहाँ रहते हैं, वहाँ क्यों गए हैं. तो चाइना को लगा कि हमारी पॉपुलेशन उधर खिंच रही है और इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प दीज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो चाइना को ये लगने के बाद व्हाट हैपेंड इज कि उनको लगा कि इंडिया का पैसिव रिस्पॉन्स है, इंडिया सपोर्ट कर रही है इस अटैक को, तो उन्होंने अटैक कर दिया. ओके, ये टाइम था जब तिब्बत पर इन्वेजन हुआ था चाइना का. ओके, पिछले कुछ सालों में चाहे वो ब्रिटिश रूल के अंडर हो या इवन आफ्टर दैट, इवन व्हेन पंचशील वाज साइंड, ये था कि फ्रेंडली फ्रेंडली रहेंगे, बट द डिप्लोमैटिक एफर्ट्स to solve border disputes were a failure. ना नेहरू ने उसके आगे कोशिश करी. नेहरू का सबसे बड़ा ये गलती थी कि उनको लगा कि चाइना अटैक ही नहीं करेगा. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज इन नेपाल, और जब ये अटैक हुआ, कृष्णा मेनन लंदन, था ही नहीं कोई यहाँ पर जो संभाल सकता था सिचुएशन को. हमारी आर्मी उतनी स्ट्रांग थी नहीं जो संभाल सकती थी. तो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो फेल हो ही गए. ओके, फोर्थ रीजन एंड द लास्ट रीजन, बिकॉज अपेरेंटली दे हैव आस्क्ड 4 रीजंस ओनली. ये चाइनीज रीजन है. ओके, चाइना स्पेशली अंडर माओ wanted to consolidate power. उसको पावर चाहिए थी और इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ दिस पावर कंसोलिडेशन का थिंग. इंडिया हमारा पार्ट है, इंडिया को तो अटैक करेंगे. ठीक है, तो पावर कंसोलिडेशन इशू था यहाँ पे कि जितना एरिया हम ले सकते हैं उतना एरिया हम लेंगे ही लेंगे. इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि चाइना को एक लिंक, पहली बात तो देखो अक्साई चिन वाला एरिया ना चाइना को डायरेक्ट एक्सेस दे रहा था तिब्बत तक का, जिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करते हुए. अभी तो मैप है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव ओपन्ड द मैप एंड शोन यू. तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता अक्साई चिन का आना. उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करना ही था वैसे भी, आई मीन तब दिमाग में था नहीं, बट उसको एक रूट सॉर्ट ऑफ बनाना था जो उसको यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था. ओके, इट वांटेड इंडियाज दिस पर्टिकुलर एरिया आल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, तभी तो इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया. ओके, तो ये एक पॉइंट और ऐड हो सकता है इसके साथ. आई मीन you have a plethora of points now, you can add as many as you want to. Okay, and then you can end your answer that thus these reasons were the ones which contributed to the Chinese attack or invasion of India in the year 1962, resulting into a Sino-India war, where India did saw a defeat, but that defeat did not defeat its morals, its spirits, its courage. Okay, all right, next. चलो आ जाते हैं एक और वॉर पे, डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आई गेट लॉट ऑफ स्पेस टू राइट एट लीस्ट. ओके, which war is being referred to in the news extract given below? State any 3 clauses of the agreement that was signed at the end of the war. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहले सवाल पूछ रहे कौन सा वॉर है, तो आप लिखोगे इंडो पाक वॉर 1971, उसका 1 मार्क है. इंडो पाक वॉर 1971. या यील्ड्स टू इंदिरा. 1965 में इंदिरा गांधी नहीं थी, तब कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे. ओके, इंडो पाक अटैक 1965, लाल बहादुर शास्त्री थे. ओके, सो this is Indo-Pak War 1971. Okay, by the way, while I was teaching these wars, I also told you कि पाकिस्तान ने तो अपना नाम गिनीज बुक में करवा दिया. Majority of the soldiers surrendered
the maximum number of soldiers surrendered in this war. Okay, beautifully fought by General Sam Manekshaw and of course Mrs. Gandhi. Okay, she did not fight the war, by the way. If anybody is going to say कि क्या कह रही है मैम, गांधी, मिसेस गांधी भी लड़ रही थी क्या वॉर? नहीं नहीं, वो नहीं लड़ रही थी. ओके, सो दिस इज इंडो पाक वॉर ऑफ 1971. हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 3 clauses ऑफ द अग्रीमेंट साइंड आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर. तो हमें वॉर के इवेंट्स, वॉर के कॉजेज, ये सब नहीं डिस्कस करने हैं, हमें क्लॉजेस डिस्कस करना है. किसका क्लॉज? अग्रीमेंट साइन. कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ था? शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था. शिमला अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान during the Indo-Pak War of 1971. क्लॉजेस क्या थे शिमला अग्रीमेंट के? प्रिटी क्लियर है, एविडेंट है एंड ऑब्वियस भी है. हमेशा ऐसे ही कुछ क्लॉजेस आ जाते हैं. सबसे पहला क्लॉज ये था कि जहां जहां आर्मी पोस्ट रखी है वहां वहां से ट्रूप्स विड्रॉ करो. दोनों साइड, बोथ साइड्स वर सपोज टू withdraw troops. Okay, to their original position. Okay. Second clause was both of them should avoid future attacks on each other. Attacks or war on each other. Future में कोई war नहीं करोगे. Okay? कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी झगड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों साथ साथ बैठेंगे एक टेबल पे और हम बायलैटरल नेगोशिएशंस करेंगे. 3 क्लॉजेस आपके सामने. बाकी आप अगर चाहें तो और भी लिख सकते हैं, हजारों लाखों चीजें हैं, बट ये 3 मेजर क्लॉज है, इन्हीं को लिखो, खत्म करो. सिंपल है, आंसर आ जाएगा दिमाग में फटाक से. लिख दो इन्हें एंड एंड योर आंसर विद दैट. ओके, दिस वाज इंडो-पाक वॉर 1971. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द सेंसरशिप ऑफ प्रेस 1975 to 1977 emergency era violate the democratic rights of common people in India? मैंने आज के ही लेक्चर में एटलीस्ट 1-2 बार तो बोला ही है कि प्रेस जो है हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है. ओके, तो वायलेशन और सेंसरशिप ऑफ प्रेस बहुत बड़ा वायलेशन है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है. ऑलराइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है. Simultaneously, it also serves the purpose of keeping checks and balances on the Indian government. क्या कर रहे हो? सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो? प्रेस हेल्प करता है कि हमने एक नजर रखी हुई है कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है. ओके, सो इट कीप्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द इंडियन गवर्नमेंट. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे. अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं जो मैंने अभी दे दिया इस फॉर्म में. यू कैन राइट, यू नो, प्रेस is the 4th pillar of any democracy, especially the Indian democracy. And a censorship of press violates the democratic or takes away the democratic nature of that particular country from itself. Therefore, during the emergency era, when Mrs. Gandhi put a restriction or censorship on the press, that was the darkest phase, as we call it, of the Indian democracy. Okay? But हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ कॉमन पीपल कैसे अफेक्ट हुए थे, वायलेट हुए थे. इंट्रोडक्शन के बाद आप आगे बढ़ेंगे. ओके, और लिखेंगे सबसे पहले जो मैंने अभी पॉइंट बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले लिया गया. सिर्फ प्रेस से नहीं लिया गया था, सबसे ही ले लिया गया. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर टेकन अवे. ओके, आपको अगर पता हो तो इमरजेंसी अनाउंस हुई उसी रात में ही मेजर प्रेस हाउसेस के पावर कट कर दी गई थी. एंड इंडियन एक्सप्रेस इकलौता पेपर था जिसने अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस किया था इन द फॉर्म ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लैंक एडिटोरियल सेक्शन. पूरा का पूरा एडिटोरियल सेक्शन ही ब्लैंक उसने छोड़ा. व्हाई? टू शो कि यू नो our right to speech, our freedom of speech and expression is being restricted, which is not supposed to be done.
Okay, so electricity of the powerhouses was cut off. You can add this point over here. Electricity cut off. इंडियन एक्सप्रेस वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ. ओके, people could not get information about what is happening in the country. No information spread. क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और तब के समय में क्या न्यूज़पेपर ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थे. सो अब इंटरनेट तो है नहीं तो आजकल तो इंटरनेट में भी देखो सीए वाला इशू हुआ था, इंटरनेट भी सस्पेंड हो गया था. ओके, सो people, they were not coming to know what is happening around them. Okay, they were totally blank about what the government is deciding, how far has this war progressed, kya ho raha hai kya, I mean not war, sorry, my bad, how far is the situation. Okay, emergency ka kya situation hai, kab khatam hogi, leaders release honge, kaun se leaders capture ho rahe hain, kuch nahi pata chal raha tha hame. Okay, so no information was spread. Then कोई भी क्रिटिसिज्म अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट था उसको सप्रेस किया जा रहा था, और प्रॉपर एक डिक्टेटोरियल रेजीम चल रही थी. हम बात डेमोक्रेसी की कर रहे हैं और यहां डिक्टेटोरियल रेजीम आ गई. ये सब अगेंस्ट डेमोक्रेसी है. ओके, मिसेस गांधी वाज बिहेविंग एज अ डिक्टेटर. एनी क्रिटिसिज्म was acted upon. आप कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो, गवर्नमेंट के एजेंट्स हाजिर हो जाएंगे. ओके, पीपल्स वॉइस was suppressed. Okay, this resulted in the loss of faith towards the government which they elected democratically, and thus their faith in the institution of democracy was shaken. क्योंकि हमने democratically elect किया आपको, अब आप ही नहीं हमारा राइट्स को, यू नो, you're not paying attention to our rights, you're not, you know, paying attention to our you know, the freedoms which we are getting. You're not even paying attention to all these things. So I as an Indian citizen lost my faith in the institution of democracy. People lost faith in the institution of democracy. Okay, they lost their faith, and eventually उनको ये भी था कि अब क्या ही फायदा इलेक्ट करके, जब यू नो डेमोक्रेसी का कोई पॉइंट ही नहीं है, डिक्टेटरशिप आ रही है. And then of course you can end by saying कि though this was the darkest phase of the Indian democracy, Mrs. Gandhi's government faced repercussions. नतीजा ये था कि she was of course removed from power in the next general elections. Janata Party came to power, and she also realized कि Indian democracy को तो कोई नहीं हिला सकता. Of the people, for the people, by the people. All right, let's move ahead. This is very, very, very irritating task, writing and erasing. See, all of you, I would suggest whichever answer you are writing, please write it in the form of points only. Best option होता है यार points के form में लिखना. With reference to the given image, explain how fight against dowry system took shape in various forms during 1970s and 1980s. देखो, begin कैसे कर सकते हैं कि इंडिया का सोशल मिलियू कैसा है. हिस्टोरिकली हमने विमेन का डोमिनेशन देखा है हर फेज में, and in the form of patriarchy, in the form of social evils, social customs, and a lot of them. तो इनके फॉर्म में जब हमने इतना देखा है कि इंडियन women are always suffering, okay, they had to somehow, जैसे ना स्प्रिंग को प्रेस कर दो तो बाउंस बैक करना होता है, जितना जोर से प्रेस करोगे उतनी तेज बाउंस बैक करेगी वो. So they had to somehow bounce back, they had to somehow fight for their own rights. और उनका अब थ्रेशोल्ड पहुंच गया, थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया था कि अब इससे ज्यादा वी कैन नॉट टेक. एंड दैट्स हाउ फाइट फॉर डेमोक्रेसी स्टार्टेड. छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं.
ओके इंडिया के ट्रेडिशंस को, सोशल मिलियो को ले लेते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद हम आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके आज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमें फोकस कहाँ करना है, 1970s एंड 80s पे करना है. तो हम 1990s और हम 2005 पे आएंगे ही नहीं. हम क्या करते हैं, हम फाइट अगेंस्ट डाउरी सिस्टम 1970s और 1980s पर ही फोकस करते हैं. ओके आप इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दो कि इन्हीं सोशल इवल में से एक सोशल इवल था डाउरी इटसेल्फ. ओके प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हिच स्टार्टेड with the formation of progressive organization. या तो इसको इंट्रोडक्शन में लिख दो. आई मीन योर चॉइस, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो. प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन ऑफ हैदराबाद. यहां से फाइट स्टार्ट हो गई इसके फॉर्मेशन के साथ. ओके सो इसका फॉर्मेशन हुआ और हमारे लिबरेशन की फाइट स्टार्ट हो गई. ओके फाइट कहां से स्टार्ट हुई, 1970s में हमने दिल्ली में देखा. दिल्ली से इनके प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे. ओके इसके बाद हमने स्त्री संघर्ष और महिला दक्षता समिति का फॉर्मेशन भी देख लिया इसी टाइम पर. स्त्री संघर्ष प्लस महिला दक्षता समिति. ओके प्लीज फुल फॉर्म में लिख लेना. वी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो जिन्होंने इस कैंपेन को ज्वाइन कर लिया है. ओके सी वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन इसको कीवर्ड का तरह लो. ये तो अंडरलाइन होना ही होना है आंसर में. दिस दे दैट दर ये सब ग्रामर नहीं मैटर करेगी. आई मीन इंपॉर्टेंट नहीं. ऑफ कोर्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मत लिख देना मैम ने कहा ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो कीवर्ड लिख के छोड़ देते हैं. नहीं सेंटेंसेस करेक्ट बनाना प्लीज, नहीं तो इंग्लिश टीचर्स हिस्ट्री टीचर्स सब मर्डर करेंगे मेरा मिलके. ओके एनी विच वेज so स्त्री संघर्ष plus महिला दक्षता समिति was formed. okay next point स्त्री संघर्ष के एफर्ट्स ने डाउरी को एक हाउसहोल्ड और डाउरी मर्डर को एक हाउसहोल्ड टर्म बना दिया था. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, पुलिस भी इसको एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया था बट हम डाउरी मर्डर को एक हाउसहोल्ड टर्म बना दिया था कि दहेज की वजह से ही औरतों की इतनी डेथ हो रही है. ओके फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ दहेज विरोधी चेतना मंडल. इसका फॉर्मेशन हुआ. इसने भी डाउरी के अगेंस्ट फाइट करा. ओके उसके बाद एंटी डाउरी कैंपेन स्टार्ट हो गए. एंटी डाउरी कैंपेन्स की वजह से क्या हुआ, एंटी डाउरी यार साइड से कैसे लिखूं मैं इतना, एंटी डाउरी कैंपेन्स एंटी डाउरी कैंपेन्स की वजह से प्रोटेस्ट एंड प्लस एक्शंस हो गया, एक्शंस ऑन द प्रोटेस्ट. ओके साथ ही साथ एक सोशल प्रेशर आया कि अब तो कुछ करना ही करना है अगेंस्ट डाउरी मर्डर्स. ओके फिर हमने देखा महिला दक्षता समिति ने दिल्ली में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया. तो आप कहाँ लिखूं मैं, महिला दक्षता समिति ने दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट डाउरी हरासमेंट एंड डाउरी मर्डर. ये 5-6 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इनको या तो आप कंबाइन करके लिख सकते हो या फिर आप इनको एक पॉइंट पे लिख सकते हो. ओके उसके बाद इसके बाद 1970s ऑनवर्ड्स आपने देखा कि मूवमेंट स्टार्ट हो गए इन्हीं हरासमेंट्स के लिए और इवन यू नो हरासमेंट्स बाय पुलिस इन कस्टडी या फिर कंप्लेन लिखवाने जाओ तो जब पुलिस हरास कर रही है उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए. पर इसके बाद ऑफ कोर्स हमने देखा कि मूवमेंट्स की वजह से काफी एक्ट्स आए, काफी लॉज बनी एंड ऑफ कोर्स फाइट अगेंस्ट डाउरी हैज एवर सिंस दैट नेवर टेकन अ डाउनवर्ड ट्रेंड. तो इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो कि चाहे स्लो ही प्रोग्रेस हो, थोड़ा तो प्रोग्रेस हुआ, तो एक ये डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ इन दिस फाइट अगेंस्ट डाउरी. ऑलराइट oh my god okay question number 6. लिखना is easy, बोलना is difficult. okay
हाँ कुछ कहेंगे मैम, लिख के आइए पेपर। लिख चुकी हूँ बेटा पेपर में भी। Question number 6 says one of the key reasons for the defeat of Axis powers in the Second World War was their inability to develop and implement a grand strategy. ठीक है, वो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप दे रहे हैं। इवेल्युएट 4 टैक्टिकल एरर्स। अभी इसके पहले 2 टैक्टिकल एरर मैंने गिनवा दिया आपको। इवेल्युएट 4 टैक्टिकल एरर्स दैट दे मेड इन दिस पर्टिकुलर वॉर। तो क्वेश्चन 6 स्टार्ट करोगे, ऐसे स्टार्ट कर दो, इंट्रोडक्शन ऐसे दे दो कि द वॉर वाज गोइंग इन द फेवर ऑफ एक्सिस पावर्स अनलेस एंड अंटिल दे मेड अ फ्यू एरर्स। मतलब स्टार्ट कर दो कि जर्मनी एंड इटली एंड जापान हैड वेरी इजीली डोमिनेटेड द वॉर बाय देयर क्लोज अलायंस, okay, and by the strategies German blitzkrieg and लेवेनस्ट्रॉम की आइडियोलॉजी के साथ जो हिटलर ने स्टार्ट किया था अपना अटैक, इट वाज वेरी एफिशिएंट इन कैप्चरिंग अ लॉट ऑफ टेरिटरीज। Had it not been for a few tactical errors that were made by all these 3 countries, they would have definitely won the wars. And then you start with the tactical errors. एक तो pretty obvious, और आप सब जानते हो कि वो pretty obvious error क्या है। USSR के पास जर्मनी का जाना और पर्ल हार्बर के पास जापान का जाना, ये तो मेजर टैक्टिकल एरर्स हैं। ओके, सो हिटलर्स ऑपरेशन, ये मत लिख देना पास जाना, ऑपरेशन मेंशन कर देना प्लीज। ऑपरेशन बारबरोसा was one such major tactical error, जहां उसने कहा लंदन तो दूर है, हम चलते हैं यूएसएसआर पे। उसको क्या लगा, यूएसएसआर पे कब्जा कर लेते हैं। यूएसएसआर पे कब्जा करने से क्या होगा, हमें पूरा यूरोप तो एटलीस्ट कंट्रोल में आएगा, और अगर ये कंट्रोल में आ गया तो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इजी हो जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा। तो ये सोचने के बाद जब ये जंप करे ऑपरेशन बारबरोसा, रशिया ने फाइट किया यूएसएसआर ने, बट फाइट थी डिफिकल्ट क्योंकि हिटलर की आर्मी थी अच्छी खासी, बट उसको फिर भी डिफीट कर दिया। ओके, तो अब जो दोस्ती चल रही थी इन द फॉर्म ऑफ मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट, वो तो खत्म। और रशिया कहेगा अच्छा बेटा, यू आर अटैकिंग अस, वी आर कमिंग टू यू। ओके, सो दैट एंडेड ओवर हियर। There was one tactical error. Same. Please don't move. Japan's attack on Pearl Harbor. So Japanese attack on Pearl Harbor was yet another tactical error. Okay? अभी क्या था, यूएस एक डोमिनेंट वोल्केनो की तरह आराम कर रहा था, पीछे से वॉर देख रहा था, पीछे से हेल्प कर रहा था। अब वो एक्टिव हो गया, मेड यूएस एक्टिव। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड। थर्ड रीजन, एक्सिस पावर्स ने अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। यानी कि जब इटली का देखो जो फॉल हुआ, तो ऑल ऑफ देम दे परसूड एन अटैक ऑन फ्रांस। ओके, while allies were liberating it together. तो उनके में यूनिटी थी, इनके में क्या था, ये बस कॉन्कर करने का देख रहे थे। ओके, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपको याद हो, जब लंदन की बॉम्बिंग हुई थी तो रॉयल एयरफोर्स ने कैसे हमको रेजिस्ट किया था उस अटैक को, कितने ब्यूटीफुली रेजिस्ट किया था कि हिटलर को जाना ही पड़ा रशिया की तरफ, उन्होंने कहा कि अभी इसको छोड़ देते हैं। बर्लिन की भी बॉम्बिंग कर दी उन्होंने। तो ये थर्ड रीजन आप लिख सकते हो। ओके, underestimating opponents, and strong defense by allied powers. रीजन मेंशन है क्या, कितने देने हैं, 4। ओके, चौथा टैक्टिकल एरर एक और डिस्कस कर लेते हैं। जापान जो था, इट फेल टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और उसने क्या किया, उसने बैटलशिप पे ज्यादा फोकस किया। ओके, उसके पास मैन एंड मटेरियल्स तो थे नहीं ज्यादा कि वो यूएस को अटैक कर सके,
ओके और यूएस क्या था, वो अपनी रिसोर्सेज इंक्रीज करता जा रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस थी, तो वो आराम से चल रहा था। आई मीन आप फोर्थ रीजन ये लिख सकते हो, जापान एयरक्राफ्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, कैरियर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया, और बैटल शिप्स को ज़्यादा फोकस किया, और जापान फाइट नहीं कर सकता था यूएस से, यूएस टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बढ़ चुका था आगे. So these were a few tactical errors that turned the war, turned the fate of the war for everyone all together. Okay? Question number 7. अगर ये क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन 7 पर आते हैं. क्वेश्चन 7 बात करता है इनिशियल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीआरसी आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट इन 1949. चैलेंजेस बहुत थे बट रिकवर भी बहुत जल्दी किया इन लोगों ने. Okay, so any 4 initial challenges faced by the people of faced by the People's Republic of China after its establishment in 1945. Okay, आप start कर सकते हो कि after its establishment Mao Zedong faced a lot of challenges. Okay, to consolidate power and transform China. सबसे पहला challenge था economic challenge, जहां पर चाइना की इकोनॉमी गिरी जा रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी नहीं उतनी. ओके तो उसको डील करने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर के आई गई थी. ओके लैंड्स वर टेकन फ्रॉम बिग लैंड ओनर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पेजेंट्स. ओके और उसके बाद उनको कोऑपरेटिव फॉर्म्स बनाने थे, तो एक दूसरा कीवर्ड हो सकता है यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड. इन दोनों को एक पॉइंट में कपल करके मिक्स कर दो, कंप्लीशन दे देंगे. ओके चैलेंज नंबर 2, डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए और डेवलपमेंट चैलेंज को एलिमिनेट करने के लिए माओ ने ज्यादा फोकस किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे. तो दूसरा चैलेंज था डेवलपमेंट चैलेंज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब मैंने बताया भी था लेक्चर के टाइम पे कि घर में ही स्टील प्लांट लगवा रहे थे, जो कि फेलियर था दो इवेंचुअली, क्वालिटी अच्छी नहीं थी. ओके साथ ही साथ इन्होंने FYP शुरू कर दिए थे, 5-year प्लान्स, टेकन आइडिया फ्रॉम रशिया. तो दूसरा चैलेंज था डेवलपमेंट चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज, डेवलपमेंट चैलेंज. ओके उनको तीसरा चैलेंज ये फेस करना पड़ा, कंसोलिडेशन ऑफ पावर. Consolidation of power was another challenge that Mao faced because he had to unite China. Okay, especially जहां पर कुओमिंतांग थी. Okay, जहां पर कुओमिंतांग प्लस अदर वॉरलॉर्ड्स थे, उनको कैसे लिबरेट करना है और कैसे चाइना को यूनाइट करना है, ये एक और चैलेंज था. ओके 4 चैलेंज डिस्कस करने, एक और डिस्कस कर लेते हैं. फोर्थ चैलेंज, चाइना की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी. ओके तो फोर्थ प्रॉब्लम उसका ये था कि वो आइसोलेट हो गया था इन द वर्ल्ड, आइसोलेटेड इन वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. ओके thus it had faced the challenge of international recognition. हमें भी वर्ल्ड ऑर्डर में लाइए, और चाइना वैसे भी इस समय क्लोज्ड इकोनॉमी है, बाद में इकोनॉमी ओपन करी है. बट यू नो यू कैन एंड इट दैट दो चाइना डिड फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इनिशियली, बट इट covered it up quickly. Okay, and eventually we saw how it grew, how it came out to be stronger. Okay, so these were 8 questions that we discussed. Now let's move on to the 9th questions. No, 7 questions which we discussed. Now let's move on to the 8th question. Analyze the controversies that surrounded Jomo Kenyatta's rule.